doxorubicin, and idarubicin. Then there is a anthracenedions, which includes mitozentron, and another one is bleumycin and plicamycin. And the mechanism of action of these antibiotic for the to kill the cancer cell is that they intercalate the DNA of the cancerous cells, and they cause the strand breakages, and then also inhibits the enzyme topoisomerase 2. So by destroying the DNA, they kill the cancerous cells. And most of these compounds have been isolated from the natural sources and the other antibiotics, but they lack the specificity like antimicrobial antibiotics, so they produces toxic effects. So first we will discuss doxorubicin. Doxorubicin mechanism, because all antibiotics have the same mechanism, it will intercalate the DNA and will cause the DNA strand damage. And this doxorubicin is used for the treatment of carcinoma, especially CA of the breast and ovary and the others, like lungs, endometrium. And it is also used for the treatment of sarcomas, especially in combination with cyclophosphamide and cisplatin, uh, and along with the nitrosourea. It is sarcoma like neuroblastoma and osteosarcoma and drapetomyosarcoma and ring sarcoma. ये इसमें use करवाई जाती है, ठीक है? And also this doxorubicin used for the treatment of different leukemias like multiple myelomas, Hodgkin's disease, etc. Regarding toxicity of doxorubicin, सारी जो आपको मैं ऑलरेडी एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स बता चुकी हूँ, वो सब तो होंगे, बट वेरी स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट विद द डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोटॉक्सिसिटी. ठीक है, इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, डी फॉर जैसे दिल की टॉक्सिसिटी इसके साथ हो सकती है. तो कार्डियोटॉक्सिसिटी में जो ये डॉक्सोरूबिसिन है, इट कॉजेस डिसरिथमियास एंड समटाइम हार्ट फेलियर, एंड that is because of the free radical which are produced by the doxorubicin. And it also causes myelodepression, alopecia, total loss of the hair, and sometimes radiation recall reaction. Radiation recall reaction mean कि जब कभी उसको कोई radiation हुई थी, कोई एक्सरे या कुछ भी रेडिएशन, तो उसके साथ जो भी उसको एडवर्स इफेक्ट या कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स आए थे, वो दोबारा से अपीयर हो जाएगी. दो साइन विल अपीयर with the use of doxorubicin, like erythema है, discoloration of skin at the site of prior radiation. और जो इसमें रेस्क्यू आप कर सकते हैं कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स को, that is by dextrazoxin. Dextrazoxin is a iron chelating agent and it prevents or reduce the cardiotoxicity. और आपने देखा होगा कि हम जो एंटी कैंसर ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं, हर ड्रग की कोई ना कोई रेस्क्यू है, ठीक है? लाइक जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट के साथ जब हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है विद एक्रोलीन, दैट इज द एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द साइक्लोफॉस्फेमाइड, उसके लिए आप मेस्ना देते हैं. मेस्ना इज मर्कैप्टो इथेन सल्फोनेट, ठीक है? और सिमिलरली जो ये है डॉक्सोरूबिसिन, इसके लिए आप ये डेक्स्ट्राजोक्सिन एज ए रेस्क्यू देते हैं, जो कि उसको कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट से प्रिवेंट करेगी बाय चिलेटिंग द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस बाय डॉक्सोरूबिसिन. और थर्ड अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स, उसमें जो है वो एंटीफोलेट्स जब हम देते हैं, तो फोलेट को की डेफिशिएंसी को रेस्क्यू करने के लिए आप ल्यूकोरिन देते हैं, ठीक है? तो ये 3 रेस्क्यू ड्रग्स हैं जो कि समटाइम कैन बी आस्क्ड इन वाइवा, और कभी एमसीक्यूज में भी इसको जो डाल दिया जाता है. तो these are the adverse effects produced by doxorubicin. Another antibiotic is bleumycin. Bleumycin is a metal-chelating glycopeptide antibiotics, and it also causes the degradation of DNA and chain termination and break the chain into fragmentation and release the free bases. ठीक है? तो DNA को totally destroy कर देते हैं. And it also chelates the iron and causes oxidation. ठीक है? And sometimes form the superoxides and hydroxyl radicals. ये आपको पता है कि सारे free radicals हैं जो कि
sometimes they are damaging to the cells. और जो टॉक्सिसिटी है रिगार्डिंग ब्लूमाइसिन विच इज स्पेसिफिक टू ब्लूमाइसिन इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। और किसके साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ था? ब्यूसल्फेन के साथ। और सेकंड जो स्पेसिफिक है विद ब्लूमाइसिन, क्योंकि इसका भी समटाइम एमसीक्यूज आ जाता है एंड यू शुड नो कि कौन सी ड्रग्स हैं एंटी कैंसर्स जो कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकती हैं। तो ब्लूमाइसिन इज द वन। 10% केसेस में ये वेरी सीरियस फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स can occur with the blumycin. Others adverse effects like allergic reactions can occur, जिसमें severe anaphylactic shock हो सकता है, fever with or without chills हो सकता है, mucocutaneous reaction like hyperkeratosis, or all the adverse effects by blumycin. Then actinomycin is a actinomycin D and is the only actinomycin that is used clinically for the treatment of the cancer. एंड इसकी डोज डिपेंडेंट जो है मैकेनिज्म इफेक्ट्स आएंगे, लाइक एट द लो कंसंट्रेशन एक्टिनोमाइसिन इनहिबिट्स द डीएनए डायरेक्टेड आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, तो आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी। एट हाई कंसंट्रेशन डीएनए सिंथेसिस इज आल्सो इनहिबिटेड एंड all the type of RNA are affected, but the ribosomal RNA is more affected, ठीक है, इसके साथ। एंड जो इसका मैकेनिज्म है कि इट बाइंड विद द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वहाँ पे इंटरकलेट कर देती है, यानी कि इनकॉर्पोरेट हो जाती है विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट परमिट द आरएनए चेन इनिशिएशन बट ब्लॉक द चेन एलोंगेशन। ये इसका मेन मैकेनिज्म है। एंड बाय बाइंडिंग टू द डीएनए इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानिन। आपने देखा कि जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं या जो डीएनए को टारगेट करते हैं, बेसिकली जो उसमें ग्वानिन बेस है इन द डीएनए, उस पे सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड डेक्टिनोमाइसिन जो है वो हर फेज पैक करता है, यानी कि दिस इज अ सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग, रेस्टिंग में भी और साइक्लिंग में दोनों फेजेस पे ये टारगेट करेगा। रिगार्डिंग इट्स फार्माकोकाइनेटिक, ये आईवी भी देते हैं और ओरली नहीं दी जाती, ठीक है। इट इज हाईली जो कहना चाहिए कि इरिटेंट व्हेन इट गेट some spillage at the site of injection can cause severe necrosis, ठीक है। तो that's why इसको आप कभी भी डायरेक्टली इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको एक फास्ट रनिंग जो ड्रिप होती है उसकी ट्यूबिंग में आप लगाते हैं, ठीक है। एक ड्रिप जैसी चल रही है तो उसकी ट्यूब में फिर ये आप इंजेक्शन लगाएंगे, सो टू डिक्रीज टू मिनिमाइज द severe local necrosis जो कि इसकी एक्सेलरेशन से हो सकती है, ठीक है। एंड हाफ लाइफ इन द प्लाज्मा इज शॉर्ट, but in the tissue it bind with the DNA and stay there for a longer period. So half life in the tissue is 48 hours. And similarly जो इसकी small dose है, small amount it is metabolized, otherwise it is eliminated unchanged form through the through the fecal and urinary route, ठीक है। इसके जो थेरेप्यूटिक यूजेस हैं, मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ट्यूमर्स, और पीडियाट्रिक ट्यूमर्स में जो सॉलिड ट्यूमर है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इज विल्म ट्यूमर एंड rhabdomyosarcoma. Then it also used for the treatment of choriocarcinoma as an alternate to the methotrexate, क्योंकि जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर choriocarcinoma दैट इज methotrexate, लेकिन अल्टरनेट हमारे पास जो है वो डेक्टिनोमाइसिन है, ठीक है। और समटाइम सेवरल अदर ट्यूमर्स, और जो सॉलिड ट्यूमर्स की हम बात करें, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी भी के साथ यूज कर सकते हैं विद एक्टिनोमाइसिन एंड रेडियोथेरेपी। This drug have a cross resistance with the anthracyclines and vincalcelides, and itself इसके against जो resistance develop होती है, that is because of the efflux pump development, and that efflux pump can be inhibited by the use of verapamil. verapamil आपको याद होनी चाहिए, is a calcium channel blocker जो कि रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स में आप इसको यूज करवाते हैं। टॉक्सिसिटी, बोन मैरो डिप्रेशन, नोजिया, वोमिटिंग, मलेज, और चूंकि ये डिवाइडिंग सेल्स डीएनए को टारगेट कर रही है तो सबसे ज़्यादा, फिर बोन मैरो डिप्रेशन इसके साथ होगा, और जीआईटी से रिलेटेड नोजिया, वोमिटिंग, मलेज, और ओरल म्यूकोसा अल्सरेशन एंड समटाइम इरप्शन ऑफ द स्किन एज वेल, वो भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है रिगार्डिंग दिस कैंसर कीमोथेरेपी इज द एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जब एंटी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है तो इट मीन्स कि जो एक्टिव माइटोसिस हो रही होती है या डिवीजन हो रही होती है सेल को, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स हैं लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरीन, पाइमिडीन्स, तो उनकी सिंथेसिस को ये स्टॉप करेंगे। ठीक है, और एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जैसे प्यूरीन है या पाइरिमिडीन है, तो ये उनके एनालॉग्स हैं। ठीक है, या जो एंजाइम उनमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं लाइक डायहाइड्रो folate reductase, तो ये उसके एनालॉग्स हैं। दे विल compete with the enzyme for binding, or they will either incorporate to the binding sites of the enzyme and into the nucleic acids। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में ये खुद जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ द नेचुरल जो कंपाउंड से, उनकी जगह ये खुद जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटी मेटाबोलाइट्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मोस्ट rapidly proliferating cells in the blood, in the body, और आपको पता है वो कौन से हैं? बोन मैरो सेल्स और GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम लाइनिंग है वो, और स्किन और जर्मिनल सेल्स, इन सब पे ज्यादा इनका जो है वो बैड इफेक्ट्स आएंगे। There are three categories of antimetabolites: antifolates, purine analogs, and pyrimidine antimetabolites. So first of all, जो methotrexate है, it is an antifolate, and if we consider its pharmacokinetic, it can be given by any routes: orally be, IV, and intrathecal. And its absorption from GIT depend upon the dose. If it is a large dose, so only partly it will be absorbed. If in a small dose, so it will be completely absorbed from the GIT. So what is the reason why it is not completely absorbed with a large dose? Because इसकी जो absorption है वो folate carrier या transporter पर dependent है, ठीक है? And that is saturable. अगर उस large dose देंगे तो वो saturate हो जाएगा. So there will be complete absorption with large dose जो है वो possible नहीं होगी. लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा high dose देते हैं तो methotrexate most likely taken up by the passive diffusion, कुछ जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड ओनली इसकी जो methotrexate की स्मॉल परसेंटेज कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। दैट्स व्हाई इफ यू नीड टू गिव इट फॉर द CNS ट्यूमर देन इट हैज टू बी गिवन बाय द इंट्राथिकल रूट। ठीक है, उसको फिर आपको इंट्राथिकल रूट से देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी अपनी जो एब्जॉर्प्शन है थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती। और इनमें से 50% methotrexate जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी हो जाती है। दैट्स व्हाई समटाइम ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं विद द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, और मिनिमल इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, बट व्हेन इट इज गिवन इन अ हाई डोज इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू 7 हाइड्रोक्सी methotrexate जो कि इसका मेटाबोलाइट्स है, एंड इट इज पोटेंशियली डेंजरस टू द बोन मैरो, और ये नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है ये जो 7 हाइड्रोक्सी methotrexate बन जाता है। And primarily it is eliminated through the kidney, and that's why it has a clear relationship between the serum level of methotrexate and renal toxicity. जितना ज़्यादा इसका लेवल ज़्यादा होगा उतने ही renal toxicity के chances ज़्यादा हो जाएंगे। Now what are the therapeutic uses of methotrexate? Basically इसको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो for uses of the carcinomas, यानी कि न्यूप्लास्टिक यूजेस और नॉन न्यूप्लेजिया या नॉन न्यूप्लास्टिक यूजेस। तो न्यूप्लेजिया जो जिसके methotrexate सबसे कॉमनली यूज की जाती है, दैट इज फॉर द गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो उसके लिए ड्रग प्रायोरिटी बेसिस पे देते हैं। एंड रिलेटेड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर ऑफ वुमेन, acute lymphocytic leukemia in children, and have a limited value for the adult leukemias। तो adults में इतना इसका यूज नहीं है, लेकिन बच्चों में जो leukemias होते हैं उसमें इसका यूज है। फाइनली जो हाई डोज methotrexate की है, along with अगर आप हाई डोज आपको देनी पड़ रही है for the osteogenic sarcoma, then you have to add the rescue, that is leucovorin। ठीक है, leucovorin जो है ये भी फोलेट है और ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को बाईपास कर जाती है। दैट्स व्हाई इट कैन बी गिवन सेफली, और ये सेल में एज सच एंटर हो जाएगी, इसको ट्रांसपोर्टर की भी जरूरत नहीं। सो methotrexate is also used for several non-neoplastic diseases।
अब जो सेकंड इसके क्या कॉमन यूजेस हैं, जस्ट लाइक जैसे आप क्लोरोक्वीन का करते हैं कि एक मलेरियल यूज है और एक नॉन मलेरियल, ठीक है। तो मलेरिया में आपको पता है वो पैसिफॉर्म मलेरिया में यूज करवा रहे होते हैं, और नॉन पैसिफेरम में सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सिमिलरली ये मीथोट्रेक्सेट के भी जो नॉन न्यूप्लास्टिक यूजेस हैं वो जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज हो सकती हैं लाइक सोरियासिस है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वैगनस, ग्रेनुलोमेटोसिस and SLE, systemic lupus erythematosus, and it is also used for the tubal pregnancy as well, ठीक है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने समझना हो तो यू कैन लुक एट द डायग्राम के इसमें methotrexate inhibits the dihydrofolate reductase, ठीक है। और what the dihydrofolate reductase do, it converts the folate monoglutamate into dihydrofolate polyglutamate, and then this dihydrofolate polyglutamate is converted into tetrahydro polyglutamate by the enzyme dihydrofolate reductase, ठीक है। तो दो जगह ये एंजाइम इन्वॉल्व है कि ये अल्टीमेटली tetrahydrofolate polyglutamate को सिंथेसाइज करे। तो दिस methotrexate will inhibit the dihydrofolate reductase. Now what is this why this tetrahydrofolate reductase is required, ये जो है tetrahydrofolate polyglutamate is act as a carrier of one carbon unit, ठीक है। and one carbon unit आपको जो प्रोवाइड करनी है किससे, to provide the methyl group so that the UMP, that is 2-deoxyuretolate uridylate converted into 2-deoxythymidylate, ठीक है। उसके लिए ये जो मिथाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट होता है बाय दिस वन कार्बन यूनिट प्रोवाइडेड बाय tetrahydrofolate reductase, and itself it will converted into back into dihydrofolate polyglutamate. तो ये सारा प्रोसेस जो है दिस विल बी स्टॉप्ड बाय methotrexate। और जो थायमिडिलेट सिंथेटेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा था फॉर द कन्वर्जन ऑफ DUMP into DTMP, दैट इज आल्सो ब्लॉक्ड बाय फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। फ्लोरोयूरासिल को भी अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि एंटी जो कि प्यूरिन एनालॉग है, तो वो किस तरह इसको इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइकिल को अगर आप समझ लें तो जितनी भी जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं यू कैन अंडरस्टैंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीफोलेट्स में जो बाकी ड्रग्स हैं 6-mercaptopurine and 6-thioguanine, they are purine antifolates is the only methotrexate, but the 6-mercaptopurine and 6-thioguanine are purine antimetabolites, and both are activated by the enzyme hypoxanthine guanine phosphoryboside transferases। ये इन दोनों ड्रग को एक्टिवेट करते हैं to the toxic metabolites, and that in turn inhibits the enzyme which is involved for the purine metabolism, ठीक है। तो ये इसका mechanism of action है। How they develop resistance against this 6-mercaptopurine and thioguanine, by either decreasing the activity of this hypoxanthine guanine phosphoryboside transferases, or by increasing the alkaline phosphatases जो कि इन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो इसके मैकेनिज्म है जिससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रिगार्डिंग इट्स फार्माकोकाइनेटिक, इनकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है, दैट्स व्हाई दे डिक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी। और सेकंड जो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो 6-mercaptopurine है इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine oxidase. तो xanthine oxidase is inhibited by allopurinol, ठीक है। और allopurinol अभी आपको ड्रग्स शायद नहीं पढ़ाई कि गाउट की ट्रीटमेंट में यूज होती है, which block the conversion of hypoxanthine into xanthine and then into uric acid, ठीक है। उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा था दैट इज xanthine oxidase। तो जब ये एंजाइम अगर ब्लॉक हो जाए विद द एलोपुरिनॉल और आपने साथ 6-mercaptopurine दी रखी है तो उसका इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन विद द 6-mercaptopurine and with the allopurinol. These drugs are used for the treatment of acute leukemias and myelocytic leukemia, and they causes bone marrow depression, hepatitis, and cholestatic jaundice. 5-fluorouracil is a
जैसे अभी पिछली डायग्राम में आपको दिखाया कि ये जो है ये उसको एंजाइम को थायमीन सिंथेटेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करती है। और कैसे ब्लॉक करेगी? क्योंकि ये खुद जो है ये 5 फ्लोरो 2 डीऑक्सी यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट 5 FDUMP, यानी दैट इज F इज फ्रेडुलेंट, एक फ्रेडुलेंट DUMP बन जाएगी। और जो ट्रू वाला DUMP है उसकी इंस्टेड ऑफ दैट इट विल इनकॉर्पोरेटेड एंड विल कन्वर्टेड इनटू FDUMP, ठीक है। तो by this doing this it will causes thymine less death of the cells. So this incorporation of FDUMP into DNA inhibits the DNA synthesis and will function, while incorporation of 5 FUTP into RNA it will inhibits the RNA processing and function, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों को ही ब्लॉक कर देती है by making a fraudulent जिसमें FDUMP आ जाता है और एक FUTP आता है जिससे RNA की सिंथेसिस भी ब्लॉक हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे आती है? बाय डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ दिस 5 फ्लोरोयूरासिल, मे बी देयर इज इंक्रीज थायमिडिलेट सिंथेटेज एक्टिविटी जो इसको नॉर्मल को एक्टिवेट कर रहा होगा, एंड रिड्यूस ड्रग सेंसिटिविटी ऑफ द एंजाइम। रिगार्डिंग इट्स फार्माकोकाइनेटिक, ये आईवी रूट से दी जाती है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इवन इनटू द सीएनएस। एंड इसकी जो मेन एलिमिनेशन है दैट इज थ्रू लिवर मेटाबॉलिज्म। Used in the bladder, breast, colon, anal, head and neck, liver, and ovarian cancer, all solid tumor of these organs, ठीक है, and can also be used topically for keratosis and for the superficial basal cell carcinoma. उसमें भी ये जो है pyrimidine analogs यूज करवाए जाते हैं, ठीक है। Cytarabine जो है it is a pyrimidine antimetabolites and again it is activated by kinases to arabinocytarabine phosphatase जो कि एक मोनोफॉस्फेटेज होता है एंड इट इज द इनहिबिटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो साइटाराबीन जो है वो खुद जो है जाके डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की जगह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड विल स्टॉप द सेल सिंथेसिस, ठीक है। ये सारा वही है जो मैंने आपको गिवन बाय आईवी रूट एंड इसकी जो है मेटाबॉलिज्म उससे ये एलिमिनेट करती है। और जो इसकी ट्रीटमेंट है वाइडली वो मैंने अभी बता दिया कि ऑल टाइप ऑफ द कैंसर ऑफ द ब्लैडर, ओवरी, लंग, स्किन एक्सेट्रा। और सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट जो इसके साथ आता है दैट इज पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस इसके साथ हो सकता है। फिर एक हमारे पास एस्पैराजिनेज हैं जो कि उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिप्लीट्स द एस्पैराजिन and which is converted into aspartic acid and ammonia. तो जो ट्यूमर सेल ग्रोथ है it is dependent on the exogenous asparagine. So by using this asparaginase जो कि asparagines को convert नहीं होने देगी so we can stop the cell division. And toxic effects of this asparaginase is hepatic dysfunction. It can cause pancreatitis, dysfunction of blood coagulation, immunodepression, CNS depression, and it sometimes act as an antigen and can cause the antigen antibody reaction, ठीक है। और जो इसका यूज है that is for the treatment of acute childhood leukemias. Hormones and hormones analogs and antagonists, agonist and antagonist both can be used for the different type of cancer. और इसको already जो है अभी आपकी जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसके आपको सारे लेक्चर्स जो है हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर हमारे पास मजीद कोई सफिशिएंट टाइम हुआ ऑनलाइन सीएनएस के बाद तो उसको हम ऑनलाइन लेक्चरिंग भी कर देंगे। अदरवाइज आपको मैंने आपकी सीआर को यही मैसेज दिया था कि आप वो सारे लेक्चर डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। और उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्कशन आप रखना चाहेंगे तो वो हम इस पर ऑनलाइन पे रख लेंगे एज ए ट्यूटोरियल फॉर्म। तो हार्मोन में जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं, दे इनहिबिट्स द लिम्फोसाइटिक प्रोलिफरेशन यूज्ड इन ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमा। आपको पता है ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी हैं और इसके अलावा ये न्यूप्लेजिया में जो है प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट करते हैं। तो न्यूप्लेजिया में भी यूज होंगे एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज होते हैं, एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज होते हैं। इसको डिटेल में जब आपको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स तो आई थिंक ऑलरेडी डॉक्टर मिर्जा आपको पढ़ा चुकी हैं,
तो उसमें ये सारा डिटेल इनका क्या मैकेनिज्म है एज ए एंटी प्रोलिफरेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, ये सब मैकेनिज्म आपको डिटेल में ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो बेसिकली यहाँ मैं सिर्फ जस्ट टच करूँगी कि कौन से जो ट्यूमर्स हैं उनमें यूज हो सकता है, लाइक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमियास में और लिम्फोमास में, दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजेनिक जो हार्मोन्स हैं दे ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन, ठीक है, एंड यूज इन द प्रोस्टेटिक ट्यूमर एंड सम केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वहाँ पे भी ये जो एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट यूज करवाते हैं। फिर हमारे पास एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है दैट इज टमोक्सिफिन। टमोक्सिफिन सम में आते हैं, ये भी आई थिंक ये वाला एंडोक्राइन जो एंड्रोजेंस और गोनेडल हार्मोन ये आपको करवाया जा चुका है। उसमें जो एंटी एस्ट्रोजेनिक भी सम एक बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर। उसमें जो मॉड्यूलेटर है एक टमोक्सिफिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्मोन डिपेंडेंट मेमोरी सेल इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ये ड्रग जो है यूज करवाई जाती है। और दूसरा ये है कि ये प्रोजेस्टेरॉन रेजिस्टेंट जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास होते हैं उनके लिए भी ये टमोक्सिफिन का यूज करवाया जाता है। तो ये खुद इसका क्या नेचर है, इट इज एंटी एस्ट्रोजेनिक एंड पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसका पार्शियल एगोनिस्ट होने का एडवांटेज ये है कि एंडोमेट्रियल सीए के रिस्क इसके साथ कम से कम होंगे, और 10 times low affinity if it is given constantly for the estrogen receptors, ठीक है। स्पेशली जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर ओरिएंटेड जो ट्यूमर्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि दे compete with the endogenous estrogen and for receptors and inhibits the transcription of estrogen response genes। ये आपने सारा सेलुलर लेवल पे ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि जो एस्ट्रोजेंस हैं या जितने भी ये जो स्टीरॉइड्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपको पता है कि इंट्रासेलुलर विद इन द न्यूक्लियस ये जाके न्यूक्लियस में जो रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ डाइमर बना के दे कॉजेज द जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड देन द स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्शन। तो यही काम इसका भी होगा टमोक्सिफिन का। ठीक है, ओरली इसको यूज करवाते हैं, मेनली इट इज मेटाबोलाइज इन द लिवर एंड इसको जो है इट रिमेन्स, इसकी हाफ लाइफ जो है टेक्स सेवरल वीक्स, और उसका जो एक्शन है वो भी सेवरल वीक्स लेता है, क्योंकि जब तक ये इसकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी तो इसमें इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, एंड टू रीच द स्टेडी स्टेट लेवल वीक्स में चली जाती है बात, हाफ एन आवर से 1 आवर तक तो एक्शन स्टार्ट हो जाता है, बट चूंकि हमें जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स लेने हैं उसके लिए उसको स्टेडी स्टेट लेवल तक पहले जाना जरूरी है। फॉर दैट इट विल टेक अबाउट सेवरल वीक्स and so first loading dose of 80 milligrams sometimes may be given to build up the effective level rapidly, and then it is followed by 10 milligram into BD, and some drugs of this tamoxifen is excreted from the GIT after enterohepatic cycling। बाकी जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाती है एज अ मोनोहाइड्रोटमोक्सिफिन एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो इसकी जो एलिमिनेशन है वो थ्रू किडनी भी है, थ्रू लिवर भी है और थ्रू जीआईटी भी है। ठीक है, this tamoxifen is used for the hormone dependent CA breast, extremely useful particularly in the patient who lack endogenous estrogen, यानी जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स होती हैं या जिनकी ओवरेक्टमी हो चुकी होती है, ओवरेक्टमी इन रिमूवल ऑफ ओवरीज, तो वहाँ पे चूंकि फिर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम होता है, तो ऐसे पेशेंट में जो हार्मोन डिपेंडेंट सीए ब्रेस्ट है वहाँ पे क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट कर रही है, तो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, एंड समटाइम एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर जो होते हैं जिनके ट्यूमर्स के ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स उनके लिए भी टमोक्सिफिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये उसमें यूज करवाती है, तो बेसिकली सीए ब्रेस्ट के लिए ये यूज करवाई जा रही होती है। Another use is
act as a chemopreventive in women at high risk of breast cancer. यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी है और अगर मेमोग्राफी में आपको कोई ऐसी फाइंडिंग मिल रही है कि जिसमें कोई वो आपको लगे कि इस पेशेंट को आगे जाके सी ब्रेस्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आप एज ए कीमो प्रिवेंटिव इस ड्रग को यूज करवा सकते हैं. आल्सो इफेक्टिव इन प्रोजेस्टेरॉन रेजिस्टेंट एंडोमेट्रियल कैंसर. उसमें भी आप इसको, चूंकि ये प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करती है, तो एंडोमेट्रियल जो रेजिस्टेंट किस्म के कैंसर हैं उनमें भी ये आप टमोक्सिफिन का यूज करवा सकते हैं. इट हैज अ कार्डियोप्रोटेक्टिव एक्शन बाय वर्च्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग एलडीएल अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज. अब आपको पता है कि जो एस्ट्रोजन है वो उसका नॉर्मल जो एक कार्डियोप्रोटेक्टिव रोल होता है, क्योंकि वो एलडीएल लेवल को कम रखती है और एचडीएल लेवल को इंक्रीज रखती है. तो यहाँ पे चूंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है तो इट विल एक्ट एज एस्ट्रोजन, तो इसका भी जो है वो एलडीएल लेवल ये कम रखेगी और कार्डियोप्रोटेक्टिव एक्शन इसका आएगा, ठीक है. ओवेरियन कैंसर और मेलानोमा में भी टमोक्सिफिन का यूज है. एंड समटाइम जो इसका इनफर्टिलिटी सेंटर में सबसे कॉमन यूज है दैट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है, वहाँ ओव्यूलेशन रिडक्शन के लिए इसको यूज करवाते हैं. रिगार्डिंग इट्स एडवर्स इफेक्ट्स, चूँकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट भी साथ कर रही है, चूँकि पार्शियल एगोनिस्ट है, तो हार्ट फ्लैशेस, ठीक है, हार्ट फ्लैशेस कॉमन है, नोजिया, वोमिटिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन इसके साथ, बट इट इज लेस, इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से सबसे ज़्यादा होती है ये फ्लूइड रिटेंशन. एंड समटाइम फ्लेयर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर sometimes subsides and sometimes, चूंकि उसकी रीजन ये होती है कि पेशेंट जो है वो शायद मेडिसिन को प्रॉपरली ले नहीं रहा होता, उसमें भी जो है सीए ब्रेस्ट दोबारा से फ्लेयर अप हो जाता है, ठीक है. So here I stop with the anti-cancer drug. और इसमें कुछ और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक जो स्टार्ट में मैं आपको बता दिया था कि जो न्यू ड्रग्स हैं, न्यू लाइन ऑफ थेरेपीज हैं जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती हैं, और इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि टायरोसिन काइनेज को, इंटरसेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स को ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है. उनको आप बुक से देख लो एक एक लाइन उसकी, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं है हमारे पास, एक्सेप्ट क्योंकि वो रिसर्च में है और कुछ उनमें से यूज करवाए जा रहे हैं, जैसे इमिटेनिब है, जेमिटिनिब है, ट्रांसटुजुमैब है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक सरफेस एंटीजन को टारगेट करती है, और उनका एडवांटेज ये है कि वो स्पेसिफिक हैं फॉर कैंसर सेल और उससे मिनिमम एडवर्स इफेक्ट आएंगे ऑन द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो लेट्स